دور کسی جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی جس کا نام رانو چڑیا تھا۔ کسی درگھٹنا میں اس چڑیا کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ اب جیون چڑیا کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنے گھر کے سامنے نکل کر بیٹھ جاتی اور کوئی نیک پکشی اسے کھانے پینے کی کوئی چیز دے جاتا۔ چڑیا چڑیا، میں تمہارے لیے میٹھا اور پکا ہوا آم لایا ہوں۔ آپ طوطے ہو نا؟ طوطے، آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے سچ میں بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ طوطا چڑیا کے سامنے وہ آم رکھ کر چلا جاتا ہے۔ اسی سمے ایک دشت کوا وہاں آ جاتا ہے۔ وہ چڑیا کے سامنے سے آم کا پھل اٹھا لیتا ہے۔ چڑیا کو کون سا آنکھوں سے دکھائی دیتا تھا، اس لیے چڑیا کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوا چڑیا کے سامنے نیم کا پھل رکھ دیتا ہے۔ چڑیا چڑیا، میں ابھی تمہارے لیے جنگل سے میٹھا پھل لے کر آتا ہوں۔ کوے بھیا، ابھی مجھے طوطا آم دے کر گیا ہے، میں آم کھا لیتی ہوں، آم میرے لیے دانا لے آنا۔ ایسے کہتے ہوئے چڑیا اس نیم کے پھل کو کھانے لگتی ہے۔ کڑوا ہے، یہ تو بہت کڑوا ہے۔ ارے چڑیا، یہ تو نیم کا پھل ہے، طوطے نے ضرور تمہارے ساتھ مذاق کیا ہوگا۔ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اس لیے سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ چڑیا چڑیا، وہ طوطا بہت برا ہے، تم پھر کبھی طوطے سے بات نہ کرنا۔ میں بھی طوطے کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسرے دن طوطا چڑیا کے پاس آتا ہے۔ چڑیا چڑیا، میں تمہارے لیے پانی لے کر آیا ہوں، اپنا پانی لو اور چلے جاؤ یہاں سے، میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم بہت برے ہو۔ چڑیا بہن، کیا ہوا؟ مجھے کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا ہے؟ مگر چڑیا طوطے سے بات نہیں کرتی۔ دوپہر کے بعد کبوتر آتا ہے اور چڑیا کو چنے کا دانہ دیتا ہے۔ چڑیا چڑیا، میں تمہارے لیے چنے کا دانہ لایا ہوں۔ وہ طوطا بہت برا ہے، وہ کل مجھے آم کا بول کر کڑوا نیم کا پھل دے گیا۔ چڑیا، تم چنتا نہ کرو، میں تمہیں ہر روز دانہ دے جایا کروں گا۔ جیسے ہی کبوتر جاتا ہے، کوا پھر سے آ جاتا ہے اور چڑیا کا چنے کا دانہ اٹھا کر وہاں پتھر رکھ دیتا ہے۔ چڑیا جیسے ہی اپنی چونچ چنے کے دانے پر مارتی ہے، اسے چوٹ آتی ہے۔ یہ تو پتھر ہے۔ چڑیا چڑیا، یہ تو پتھر ہے، یہ پتھر تمہیں کس نے دیا کھانے کو؟ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ چڑیا رونے لگ جاتی ہے۔ اب میں کس کا وشواس کروں؟ کل طوطا مجھے نیم کا پھل دے گیا اور آج کبوتر مجھے چنے کے دانے کا بول کر پتھر دے گیا۔ چڑیا، یہاں کوئی بھی تمہارا دوست نہیں ہے، سب برے ہیں سوائے میرے۔ کل میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا، آج میں تمہارے لیے میٹھا پھل ضرور لے کر آؤں گا۔ کوا آرام سے چڑیا کا چنے کا دانہ اٹھاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چڑیا بے آسرا بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں جنگل کی اچھی پری آ جاتی ہے۔ چڑیا چڑیا، میں تمہیں تمہاری آنکھوں کی روشنی لٹانے آئی ہوں تاکہ تم دیکھ سکو کہ کون اچھا کون برا۔ یہ پانی تم اپنی آنکھوں میں ڈال لو۔ اچھی پری ہو نا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پری چلی جاتی ہے اور چڑیا جیسے ہی وہ چمتکاری پانی اپنی آنکھوں پر ڈالتی ہے، چڑیا دیکھنے لگتی ہے۔ چڑیا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ کون اچھا کون برا مجھے جاننا ہوگا۔ چڑیا پہلے کی طرح اندھی ہونے کا ناٹک کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد طوطا پھر سے آتا ہے۔ چڑیا چڑیا، میرا کوئی دوش نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ لو، یہ امرود تم کھا لو، میں بہت دور سے یہ امرود تمہارے لیے لایا ہوں۔ اسے وہاں رکھ دو طوطے اور جاؤ۔ طوطا وہ امرود رکھ کر چلا جاتا ہے۔ کوا تو پیڑ کے پیچھے بیٹھا یہی دیکھ رہا تھا۔ کوا جلدی سے وہاں آتا ہے اور امرود اٹھا کر وہاں لال مرچی رکھ دیتا ہے، مگر آج چڑیا سب دیکھ رہی تھی۔ چڑیا چڑیا، یہ لال مرچی تمہیں کون دے کر گیا ہے؟ یہ لال مرچی مجھے طوطا دے کر گیا ہے، مگر دیکھو تو تمہارے پیچھے کون ہے؟ کوا پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو چڑیا پاس پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا کر کوے کی پونچھ پر مارتی ہے۔ دشٹ کوے، میں دیکھ سکتی ہوں، اچھی پری نے مجھے میری آنکھوں کی روشنی واپس دے دی ہے، چل بھاگ یہاں سے، تم برے ہو، تم بہت برے ہو۔ پھر کوا روتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر چڑیا کبوتر اور طوطے سے دوستی کر لیتی۔ کووں کی زمین پوری طرح بنجر ہو چکی تھی، اب تو اس پورے کھیت میں کیول ایک ہی پیڑ بچا تھا۔ کالو جی، اب ہمیں اس کھیت سے کوئی منافع نہیں ہونا، کیوں نہ ہم یہ کھیت رانو چڑیا کو دے دے؟ گوری، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کام کرے گی چڑیا، محنت کرے گی چڑیا، اور پھر جب فصل ہوگی تو ہم
चिड़िया से ये खेत वापस ले लेंगे। फिर दोनों कौवा और कौवी रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, तुम हमारे खेत में अपनी फसल उगा लो। जब फसल तैयार हो जाएगी तो दोनों आधी आधी कर लेंगे। ऐसे तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। कौवा, मैं एक बार खेत को देख लूं। देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो खेत बहुत जरखेज है, सोना उगलता है हमारा खेत। ठीक है, मैं खेत में काम करूंगी, मुझे मंजूर है। कौवे चले जाते हैं और रानो चिड़िया कौवों के खेत की तरफ जाती है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई पौधा नहीं है, सारा खेत खाली पड़ा है। चिड़िया को निराश देखकर पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, निराश मत होना, तुम मेहनत करो, काम करो। इस खेत में पहले हर तरह की फसल होती थी, लेकिन उन आलसी कौवों ने मेहनत नहीं की और ये खेत बंजर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, मैं मेहनत करूंगी, हिम्मत से काम लूंगी और इस खेत को फिर से आबाद करूंगी। चिड़िया अपने घर जाती है और फिर दूसरे दिन से खेत में काम शुरू करती है। चिड़िया अपने बैल से खेत में हल चलाती है। चिड़िया सारा दिन खेत में काम करती है। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, क्यों मेहनत कर रही हो? ये खेत कभी आबाद नहीं होगा, ये बंजर खेत है, मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तोते, मैं जानती हूँ कि ये खेत बंजर है, लेकिन मेहनत कभी जाया नहीं होती। मुझे विश्वास है, मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। किस्मत की बात है, दूसरे दिन आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होती है। बारिश से कौवों की बंजर जमीन को पानी मिलता है। चिड़िया अपने घर में बैठी बारिश को देखकर बहुत खुश हो रही। दूसरे दिन जब चिड़िया खेत जाती है तो जमीन में एक तरफ पानी खड़ा था और दूसरी तरफ की जमीन सूख चुकी थी। अब इस खेत में क्या लगाऊं? मैं माँ से पूछ कर आती हूँ। चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खेत में क्या लगाऊं। रानो बेटी, जिस खेत में ज्यादा पानी है आप वहाँ चावल की खेती करो और जो खेत सूख चुका है वहाँ मकई बो दो। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि रात की बारिश ने मेरे खेत को पानी दे दिया। अब मैं वहाँ फसल उगा सकती हूँ। रानो चिड़िया वापस जाती है और पानी वाले खेत में चावल के बीज डाल देती है और जो खेत खुश्क था उस खेत में मकई की फसल लगाती है। दिन गुजरते गए। चिड़िया मेहनत से काम करती रही और फिर एक दिन चिड़िया के खेत में हरियाली ही हरियाली थी। मकई के छोटे छोटे पौधे और चावलों के पौधों ने पूरे खेत को सरसब्ज कर दिया था। कालू जी, कई दिन बीत गए, चलो तो आज खेत में जाकर देखते हैं। चिड़िया खेत में दिन रात काम कर रही है, चलो हम भी जाकर देखते हैं। फिर कौवा और कौवी अपने खेत की तरफ जाते हैं। दोनों कौवे खेत को देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, ये किसका खेत है? रानो चिड़िया बोलती है, ये वही खेत है जो बंजर और बेआबाद था। मैंने यहाँ मेहनत की और मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। कुछ दिनों के बाद चावलों के पौधों पर सिक्के लग जाते हैं और मकई के पौधों पर मकई के भुट्टे। अब चिड़िया की फसल पानी मांग रही थी। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगर मैंने फसल को पानी न दिया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। चिड़िया को परेशान देखकर पेड़ बोलता है, चिड़िया हवाओं की दिशा बता रही है कि पास ही बादल है। आप बादलों के पास जाओ और उनको बताओ कि आपकी फसल सूख रही है। पेड़ जी, आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी। मैं जब भी परेशान हुई आपने मुझे उम्मीद दिलाई। चिड़िया उड़ती है और उड़ते उड़ते बादलों के पास पहुंच जाती है। गरजू बादल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने मेहनत की, अपने खेत में फसल उगाई, बंजर खेत को आबाद किया, लेकिन अगर अब बरसात न हुई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया रानी, चिंता न करो, मैं अभी सागर से पानी पी कर आता हूँ और साथ अपने दोस्तों को भी लाता हूँ। आज रात हम तुम्हारे खेत को जल थल कर देंगे। चिड़िया की आंखों में खुशी थी। बादल सागर से पानी पीने चला जाता है। सारे दोस्त, छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, जी भर कर पानी पी लो। आज रात हमने चिड़िया के खेत पर बरसात करने जाना है। बड़े बादल का आदेश सुनते ही सारे बादल सागर से पानी पीने लगते हैं। शाम के बाद ही आसमान पर बादल छाने लगते हैं। चिड़िया भी अपने खेत में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरे दोस्त आगे, मेरे दोस्त मेरी मदद करने आगे हैं। अब बरसात होगी और मेरी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। बारिश शुरू हो जाती है। सारी रात बारिश के होने से चिड़िया का पूरा खेत पानी से भर जाता है। मकई और चावल के पौधे खुश हो जाते हैं। पूरे 10 दिन के बाद चिड़िया की मकई और चावलों की फसल पककर तैयार हो जाती है। चिड़िया कौवों के पास जाती है।
गोरी और कालू, मकई और चावल की फसल पककर तैयार है। आप मेरे साथ चलें और फसल काट कर बांट लें। चिड़िया, क्या मकई की फसल इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ गोरी बहन, फसल बहुत अच्छी तरह तैयार है। कौवी और कौवा जल्दी से उड़ते हैं और खेत में पहुंच जाते हैं। चिड़िया मकई का और चावलों का अलग अलग ढेर लगाती है। कौवे भैया, मेरा हिस्सा मुझे दो और अपना हिस्सा आप ले ले। कौन सा तुम्हारा हिस्सा? ये खेत हमारा है और इस खेत की फसल भी हमारी है। चलो चलो भाग यहाँ से। ये न्याय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने दिन रात मेहनत की, दिन रात एक करके खेत में काम किया और अब आखिर में तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। चिड़िया रोने लग जाती है। चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया का हक मैं चिड़िया को लेकर दूंगा। पीछे ही कबूतर भी आ जाता है। जिसने दिन रात मेहनत की उसे मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। हम नहीं मानते, ये खेत हमारा है। लेकिन जब बड़ी चील वहाँ आती है तो कौवा और कौवी डर जाते हैं। काले कौवो, तुम दोनों दिल के भी काले हो। पहले तुम्हारे इस खेत में एक दाना भी नहीं उगता था और अब तुम्हें आधी फसल बैठे बिठाए मिल रही है। क्यों इतने लालची हो गए हो कि दूसरों का हक भी छीन रहे हो? पक्षी एक साथ थे और कौवे डर जाते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। आप सभी हमें हमारी फसल बांट कर दे दे। फिर चील दी तराजू से फसल 2 हिस्सों में बांट देती।